یہ 10 جانور اگر آپ کے گھر میں ہیں تو آج ہی گھر سے نکال دو، ورنہ گھر میں اچانک موت کا سبب بن سکتے ہیں۔ ویڈیو کو اگنور مت کرنا۔ یہ 10 جانور تقریباً ہر گھر میں ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کچھ ایسے جانور بھی ہیں کہ جن کو گھر میں رکھنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے، اور ان میں سے تو کچھ ایسے جانور بھی ہیں کہ جن کے سبب گھروں میں بے وقت موت تک ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کے گھر میں بھی ان جانوروں میں سے کوئی ایک جانور موجود ہوگا تو اسے فوراً گھر سے ابھی نکال دیں، کیونکہ جب تک وہ جانور آپ کے گھر میں موجود رہے گا آپ کے گھر میں برکت نہیں آ سکتی، آپ کبھی بھی دولت مند نہیں بن سکتے۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں نہ صرف آپ کو ان منحوس جانوروں کا بتائیں گے بلکہ ان کو اپنے گھروں سے نکالنے کا طریقہ بھی بتائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا ہے، لیکن کچھ مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کر دیا جبکہ کچھ کو حرام۔ اس طرح سے کچھ ایسے جانور ہیں جو گھروں میں برکت اور رحمت لے کر آتے ہیں، جبکہ کچھ جانور گھروں میں زوال لاتے ہیں اور بے برکتی کی وجہ بنتے ہیں۔ نمبر 1، مکھی۔ علماء کرام اور بزرگان دین مکھی کا شمار نجس ترین مخلوقات میں کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مکھی نہ صرف گھر میں بے برکتی لاتی ہے بلکہ رزق کی تنگی لانے کی وجہ بھی بنتی ہے۔ یہودی اور عیسائی تو مکھی کو شیطان کا دوست مانتے ہیں، اور اس کی وجہ وہ یہی بتاتے ہیں کہ زیادہ تر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، جیسا کہ انسان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، اور بہت سے چوپاؤں مثلا کتا، بلی، بکری، گائے، بھینس وغیرہ، ان سب جانوروں کی 2 ہی آنکھیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک مکھی کی 3000 آنکھیں ہوتی ہیں، یعنی اس کے منہ کے دونوں اطراف 1500 آنکھیں موجود ہوتی ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان میں سے صرف 2 آنکھیں مکھیوں کی اپنی ہوتی ہیں جبکہ باقی کی آنکھیں شیاطین کی ہوتی ہیں، اور ان آنکھوں کے ذریعے سے وہ انسانوں پر نظر رکھتے ہیں۔ اور تاریخ کا مطالعہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ مچھر کے بعد انسانوں کے اندر سب سے زیادہ بیماریاں پھیلانے والی اور انسانوں کی موت کا سبب بننے والی مخلوق مکھی ہی ہے۔ لیکن بزرگان دین نے مکھیوں کو گھروں سے نکالنے اور گھر سے دور رکھنے کا ایک بہترین طریقہ بھی بنا رکھا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ مکھی جسے عرف عام میں نیاز بو کا پودا بھی کہا جاتا ہے، آپ نے نیاز بو کے پتے لے لینے ہیں، ان کو مسل لینا ہے اور گھر کے ہر کونے میں کچھ پتے مسلنے کے بعد پھینک دینے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں موجود تمام مکھیاں گھر سے باہر نکل گئی ہیں۔ نمبر 2، چھپکلی۔ چھپکلی گھر میں مصیبت اور پریشانی لانے والا جانور ہے۔ علماء کرام اور بزرگوں کا ماننا ہے کہ جس گھر میں چھپکلی پائی جاتی ہے اس گھر میں اچانک سے مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم تک دے رکھا ہے، کیونکہ چھپکلی ایک نافرمان جانور ہے۔ جب نمرود کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو شہد کی مکھی نے اس پر بہت ہی زیادہ افسوس کا اظہار کیا تھا، جبکہ چھپکلی اس پر خوش ہوئی تھی اور نمرود کو حق پر قرار دیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ناحق کا ساتھ دینے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ چھپکلیاں پائی جاتی ہیں تو گھر سے چھپکلیوں کو نکالنے کے لیے ایک آسان طریقہ بھی موجود ہے۔ آپ نے انڈوں کے چھلکے لے لینے ہیں اور گھر کے جتنے بھی کونے ہیں جن کونوں میں چھپکلیاں عام پائی جاتی ہیں ان کونوں میں انڈوں کے چھلکے رکھ دینے ہیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں جتنی بھی چھپکلیاں تھیں وہ گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ نمبر 3، چوہا۔ چوہے شروع ہی سے انسانوں کے دشمن رہے ہیں، انسانوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچاتے چلے آ رہے ہیں۔ چوہے فصلوں میں بھی گھس جاتے ہیں اور فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کے سبب پیداوار بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ اناج کے گوداموں میں گھس کر اناج کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی وجہ سے کئی علاقوں میں قحط سالی پڑ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں انسان مرتے آئے ہیں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر گھر میں ایک چوہا موجود ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر 2 یا 2 سے زیادہ چوہے ہوں تو ان کو گھر میں موجود رہنا گھر میں رزق کی کمی لاتا ہے۔ گھر میں موجود چوہوں سے نجات کیسے حاصل کرنی چاہیے تو اس کا حل بھی ہمیں اسلامی تاریخ سے یہ ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تو یقیناً آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سخت نافرمان ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک کشتی بنائی اور اس میں آپ نے تمام مخلوقات کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں بہا دیا
तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में चूहों का एक जोड़ा भी था, जिन्होंने तेज़ी से अपनी आबादी को बढ़ाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते कश्ती में चूहों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई, जिन्होंने ना सिर्फ अनाज को खाना शुरू कर दिया बल्कि कश्ती में जगह जगह सुराख करने भी शुरू कर दिए। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पैगाम देकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास भेजा कि अपनी कश्ती में मौजूद शेर की पीठ पर हाथ फेरे। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पीठ पर हाथ फेरा तो शेर ने एक ज़ोरदार छींक मारी और बिल्लियों का एक जोड़ा इसके दोनों नथनों से बाहर गिरा। बिल्लियों के इस जोड़े ने कश्ती के अंदर मौजूद तमाम चूहों का खात्मा कर दिया। इसलिए अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा चूहे पाए जाते हैं तो कोशिश करें कि घर में एक बिल्ली पाल लें। बिल्ली ना सिर्फ घर में मौजूद तमाम चूहों का खात्मा कर देगी बल्कि घर में बिल्ली रखने से बरकतें और रहमतें भी नाजिल होंगी। बिल्ली का घर में रखना बहुत ज़्यादा मुबारक माना जाता है। नंबर 4, चमगादड़। 90% से ज़्यादा लोग जिनके घर में चमगादड़ें रहती हैं, इन्हें इस बात का पता ही नहीं चल पाता कि इनके घर में ये मखलूक आकर रहने लग गई है। आपने यकीनन इस मखलूक को अक्सर रात के वक्त उड़ते हुए देखा होगा। अक्सर लोग चमगादड़ और चमचड़क को एक ही मखलूक समझते हैं, लेकिन असल में ये दो अलग अलग नस्ल के जानवर हैं। चमगादड़ साइज़ में काफ़ी बड़ा, यहाँ तक कि एक कौवे से दुगना साइज़ में हो सकता है। चमगादड़ दरख्त पर रहते हैं और आमतौर पर दिन के वक्त उल्टे लटके होते नज़र आते हैं, लेकिन जो चमचड़क होती है ये साइज़ में काफ़ी छोटी होती है। इनका साइज़ आमतौर पर चिड़िया या चिड़िया से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने चमचड़क के जिस्म में बहुत ही नरम हड्डियाँ रखी हैं, इसलिए ये आसानी से घर के किसी भी कोने में घुस जाती है। आम तौर से घरों में जो पाइप या परनाले वगैरह होते हैं, यहाँ चमचड़िक आसानी से घुसकर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगती है और घर वालों को पता ही नहीं चलता कि इनके घर में चमचड़िक मौजूद है। साइंसदानों का चमचड़िक के बारे में ये कहना है कि जिस घर में ये रहती हों, घर के लोगों में आम तौर पर खून की बीमारियां, सांस के अमराज और बवासीर की बीमारियां पाई जाती हैं, जबकि बुजुर्गान दीन और उलमाए कराम का कहना है कि जिस घर में चमचड़िक आकर अपना बसेरा कर लेती है तो इस घर में फ़कीरी और बर्बादी आती है। मोहतरम नाज़रीन, अपने घरों को बखूबी जायज़ा लिया करें। अक्सर पाइपों पर, परनालों के पीछे या ऐसी जगह जहां पर बहुत सारा सामान पड़ा होता है, वहां सुबह के वक्त गौर से देखें। अगर वहां आपको गोल गोल दानों में बीट नज़र आती है तो समझ जाएं कि आपके घर में चमचड़क रहती हैं। नंबर 5, लाल बेग। बुजुर्गों और उलमाए कराम के मुताबिक लाल बेग नजिस कीड़ा है। जिस घर में भी बहुत ज़्यादा तादाद में लाल बेग पाए जाते हैं, उस घर में रहमत नहीं आती और बेबरकती और नहूसत उस घर की किस्मत बनकर रह जाती है। साइंसदान पहले लाल बेग को बेज़रर कीड़ा माना करते थे, लेकिन जदीद रिसर्च में ये बात सामने आई है कि लाल बेग बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक कीड़े होते हैं। लाल बेग ऐसे केमिकल छोड़ते हैं जो कि दिल के अमराज को पैदा करते हैं, जबकि बात भी हकीकत में सामने आई है कि जिन घरों में बकसरत लाल बेग पाए जाते हैं, घरों के रहने वालों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके घर में कभी लाल बेग पाए जाते हैं तो इनसे निजात हासिल करने के लिए एक बेहद आसान तरीका ये है कि रात को सोने से पहले जितने भी इस्तेमाल शुदा या झूठे बर्तन हैं, इनको आप धोकर सोएं और जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं, इन्हें आपने अच्छी तरह से ढांप देना है और सोने से पहले घर का जितना भी कूड़ा किरकट है, इसे एक शापर में डालकर घर के दरवाजे के बाहर रख दें। कुछ दिन तक यही मामूल रखने से आप देखेंगे कि आपके घर से लाल बेग का खात्मा हो जाएगा। कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है और यही वजह है कि ये परिंदा अक्सर घरों में पाला जाता है और घरों के अलावा अक्सर मज़ारों पर भी ये परिंदा मौजूद होता है। कहते हैं कि कबूतर वो जानवर है जिसके लिए हज़रत नूह ने अमन व सलामती की दुआ फरमाई थी और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मनूस है और कौवे को खौफ की बद्दुआ दी जाती है। यही वजह है कि इंसानी आबादी से हरासा रहता है, इसी वजह से लोग आज तक इसे मनहूस समझते हैं। तफसीर में है कि हज़रत नूह ने जब कश्ती को जोदी पहाड़ पर ठहराया तो आपने कश्ती का वो हिस्सा खोला जहां परिंदे रहते थे, तो आपने कौवे से फरमाया ज़मीन को देखकर इस पर कितना पानी है या कितना शहर गर्क हो चुका है। कौवे को एक मर्दार जानवर मिला, वो उसी को खाने में मस्त हो गया, वापस ना आया। इसी से अरब की एक कहानी मशहूर है, फ़लाँ तो कौवे से भी ज़्यादा देर लगाता है।
चुनाचे हज़रत नूह को खुश्क और सख्त ज़मीन की ज़रूरत थी, इसलिए इसके देर करने पर कबूतर को भेज दिया। इसे ज़मीन का कोई खित्ता भी नज़र ना आया, इसीलिए जैतून का पत्ता लेकर हाजिर हो गया। इससे हज़रत नूह ने अंदाज़ा लगाया कि पानी कम है, जिससे दरख्त ज़ाहिर हो गए हैं, लेकिन ज़ेरे आब हैं। चंद दिन ठहर कर फिर इसी कबूतर को भेजा तो ज़मीन के कीचड़ में इसके पाँव फंस गए। वापिस आया तो हज़रत नूह ने इसे देखकर अंदाज़ा लगाया कि अब पानी ज़मीन में जज़ब हो गया है, लेकिन ज़मीन खुश्क नहीं हुई। हज़रत नूह कबूतर की इस कार्रवाई पर बहुत खुश हुए और इसके गले में सब्ज़ तोक पहनाया। आज वही तोक कबूतर की इस खुशबख्ती की खबर देता है और साथ ही हज़रत नूह ने कबूतर के लिए अमन और सलामती की दुआ फरमाई। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मनूस है और कौवे को खौफ की बद्दुआ यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हरासा रहता है। इसी वजह से लोग आज तक इसे मनहूस समझते हैं। ये तो कबूतर की कहानी थी। एक ऐसे कबूतर ने हज़रत नूह की बात मानी और इनके लिए खबर लाने का काम किया। फ़िक़ा के नज़दीक घरों में शौकिया परिंदे रखना और पालना जायज़ व मबाह है, बशर्ते कि इनकी ग़िज़ा और सर्दी गर्मी और बारिश से हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए, और जब अहले खाना कहीं बाहर जाएँ तो इनकी ग़िज़ा और देखभाल का मुनासिब नज़म करके जाएँ। सैयदना अनस के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब रसूलुल्लाह इनके यहाँ तशरीफ़ लाते तो इसे कहते, ए अबू उमैर, परिंदे ने क्या किया? ये हदीस इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया। अगर घर में परिंदा पालना मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के भाई को इस बात से मना फरमाते। इस रवायत की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि घरों में परिंदों का पालना जायज़ है, लेकिन जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि इनके पालने के लिए ज़रूरी है कि परिंदों की हर ज़रूरत को पूरा किया जाए ताकि परिंदों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचे। चुनांचे कबूतर भी एक परिंदा है, इसीलिए कबूतर का घर में पालना दुरुस्त है। याद रहे कि परिंदों को सताने के बारे में मुमानत है, जैसा कि अबू दाऊद में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत करदा एक हदीस में कबूतर का जिक्र है, जिसमें कबूतर अल्लाह के रसूल के सर मुबारक पर मंडला रहा था और अपनी ज़ुबान में शिकायत कर रहा था कि किसी ने इसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया और एक सहाबी ने अंडे उठाना कबूल किया तो उन्हें हुक्म दिया गया कि वो घोंसले में अंडे वापस रख दें। तो इस रवायत से मालूम है कि परिंदों को सताना जायज़ नहीं, तो परिंदों को सताने से इसीलिए रोका गया है कि परिंदों की बद्दुआ लगने का एहतमाल है, और चूँकि कबूतर भी इन परिंदों में शामिल है जो कि अंबिया का पसंदीदा रहा है, इसीलिए अगर कबूतर को सताया जाएगा तो कबूतर भी बद्दुआ दे सकता है। लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तनाब करना चाहिए। कबूतर के हवाले से आपको बताते हैं कि इस्लामी तालीमात इसके बारे में क्या कहती है। अहादीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साहिब खाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किसी शख्स ने रसूलुल्लाह से तन्हाई की शिकायत की तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर का पाल ले। हज़रत जाफ़र फरमाते हैं कबूतर पैगंबरों के परिंदों में से है, कबूतर घर में रखो, क्योंकि हज़रत नूह ने इसको पसंद किया है और दुआ दी है कि किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आपने फरमाया जिस घर में कबूतर हो उस घर के रहने वाले जिन्नों की आफतों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिन्नों के बच्चे घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो इनसे मशगूल रहते हैं और आदमियों की तरफ मुतवज्जो नहीं होते। इसी तरह एक और रवायत में आता है कि कबूतर का जो पर झड़ता है वो शयातीन की नफ़रत और भागने का सबब होता है। इस रवायत से ये बात मालूम हुई कि कबूतर का घर में पालना मुअज्जब बरकत है, और जैसा कि आपके सहाबी घर में कबूतर पालने का बोला तो आप इस बात से मालूम होता है कि कबूतर पालने में खैर है। कबूतर पालने के साथ मुतल्लक याद रहे कि बाद लोग शौक़ से कबूतर पालते हैं। इनका शौक़ कबूतर पालने की हद तक होता है, लेकिन बाद लोग कबूतर बाजी की नीयत से कबूतर पालते हैं, और चूँकि कबूतर बाजी में वक्त और पैसा का ज़िया है। याद है कबूतर पालना एक महंगा और मेहनत तलब शौक़ है। कबूतर बाजी के मुकाबले में अगर सख्त गर्मी में होते हैं मगर इनकी तैयारी सारा साल जारी रहती है। शौकीन अफराद एक एक कबूतर पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। आला नस्ल के इन कबूतरों को ख़ास तरीके से तरबियत दी जाती है और ये मुकाबले सूबाई और कौमी सतह पर होते हैं। शौकीन अफराद आबादी में जगह जगह पिंजरे लगाकर अपने वक्त का काफ़ी हिस्सा इन पालतू परिंदों में सर्फ करते हैं। इसीलिए कबूतरबाजी के बारे में अगर फ़िक़ा से पूछा जाए तो वो इसको दुरुस्त नहीं फरमाते, क्योंकि इसमें माल वक्त का ज़िया होता है।
جو کہ فضول خرچی میں آتا ہے، اس لیے ہمیں ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گھروں کو ایسے نجس گندے جانوروں سے محفوظ ممنون فرمائے، نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آخر میں کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ اللہ حافظ۔